You can do, ma'am. ठीक है जी, thank you. Yes, Vite, let me take out the diagram which we have to complete today. Yes, I think this part was done. Up to this part, I hope we have not drawn the diagram. है ना? So firstly, let us revise once. So when unequal intervals are given, the first step is to check the formation of all the intervals carefully to be aware कि भाई this is example of unequal intervals. Then what is to be done? Then we have to draw one more column and heading to be given is adjustment factor. And formula is already there with you. Firstly, we have to check which is the lowest gap. Then each one of the class, its gap to be taken divided by lowest gap. ठीक है, हर एक क्लास का अपना कितना गैप है उसको लोएस्ट वन से डिवाइड करते जाना है. देन वी हैव गॉट दिस एडजस्टमेंट फैक्टर. After that, now we have to adjust this frequency also. Then we have to name it adjusted frequency. और इसका फॉर्मूला क्या है? गिवन फ्रीक्वेंसी मतलब ईच क्लास की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी जैसे 7 डिवाइडेड बाय इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट फैक्टर. ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ दैट वेरी क्लास. फिर जो भी वैल्यूज आएंगी दे विल बी देयर विद अस इन द टेबल. एंड देन इन द डायग्राम व्हाट इज टू बी शोन, डायग्राम में क्या करना है? On y-axis, these adjusted frequencies are to be shown. Diagram will be drawn on the basis of this adjusted frequency. ठीक है, इसको ध्यान में रख के ड्रॉ करना है डायग्राम, इसको नहीं ध्यान में रखना. Now its part is over. जो हमें ओरिजिनली फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, नाउ इट्स वर्क इज ओवर, इट इज नॉट टू बी पेड अटेंशन. यू कैन टिक मार्क दिस फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज टू बी शोन ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल्स सेम, दे विल रिमेन सेम. ठीक है, क्लास इंटरवल्स विल रिमेन सेम बट ऑन वाई एक्सिस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वैल्यूज आर टू बी डिपिक्टेड. ठीक है, नाउ हाउ टू डू दिस? लेट अस स्टार्ट द डायग्राम. प्लीज ड्रॉ द एक्सिस एज यू कैन सी हियर. On y-axis we have taken number of workers. नाम वही रखना है which is given. Number of workers मतलब you can write in bracket adjusted frequency. You may write for the sake of information. Number of workers bracket में please write adjusted frequency. And on x-axis wages. ठीक है, now adjusted frequency में which is the highest value 27. That means we can take gap of 5, 10, 15, 20, 25, 30. Because highest value 27 है तो at the most 30 तक our points will go up to 30. Please do this on graph paper. Then on x-axis wages variable is to be shown. Now see carefully, it is going up to, first interval is 10 to 15 and last is up to 60 to 80. That means कि हमें 10 से लेके we have to show values up to 80. ये मीनिंग हुआ ना? अगर first value lower limit of the very first interval is 10 and last value of the last interval upper value is 80, that means हमें which points we need to show? 10 से लेके up to 80 we have to show. तो then that is why I have firstly taken gap of 10. आप अपने ग्राफ पे थोड़ा सा वाइड लेना है, ज़्यादा स्मॉल नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ टू बी फर्दर डिवाइडेड. थोड़ा सा ये वाइड रखना है. ठीक है, तो गैप ऑफ 10 हैज़ बीन टेकन इन द बिगनिंग. 10, then 20, then 30, 40, 50, 60, 70, 80. अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये नहीं कि आप पूरा ही इतना विड्थ उसकी ज़्यादा ही कर दो. अप्रोप्रिएट साइज देखने में भी ठीक लगे. ठीक है, पहले 10 का लेना है. आफ्टर दैट देन प्लीज विद द हेल्प ऑफ पेंसिल मार्क ए पॉइंट इन द मिड ऑफ दिस इंटरवल. जैसे ये यहाँ पे 5 पे आप पॉइंट लगा लीजिए. आफ्टर दैट 10 और 20 के मिडल में ऑन 15, देन 20 और 30 के बीच में 25 के ऊपर ऑन योर ग्राफ पेपर, देन ऑन 35, 45, 55, 65, 75 ये भी लगा लेने हैं. Why so? अभी that will be made clear just in a while. ठीक है, now let me show the next part of the. हाँ जी, now you see your table.
each one value is to be shown. Now see, in your notebook you have already written first interval is 10 to 15, ठीक है, and 10 to 15 के सामने what is the adjusted frequency 7, ठीक. तो यहाँ पर हमने we will start from this 10, don't start from 0, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंटरवल 10 है, 10 से 15 है. तो 10 से 15 के बीच में ड्रॉ ए लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 7. सो टेक दिस हाइट अप टू 7, ऐसे 15 के ऊपर ड्रॉ लाइन अप टू 7 एंड देन ज्वाइन दिस अपर पार्ट, टॉप के ऊपर ये राइट डाउन 7. दिस इज अवर फर्स्ट रेक्टेंगल. ये हिस्टोग्राम ही बन रहा है, दिस इज द रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है. देन सेकेंड इंटरवल इज 15 टू 20, ठीक है. तो नाउ 15 के ऊपर अप टू 7 तो ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन ए लाइन, इतनी तो बनी हुई है. तो हमें और कितना चाहिए, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज 10. दैट मीन्स इफ वी एक्सटेंड दिस लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 15 वैल्यू, इसी को ऊपर एक्सटेंड कर दें सेम लाइन एंड टेक इट अप टू 10. और थोड़ा सा ये पार्ट और पेंसिल से वी कैन ड्रॉ अप टू 10. सेम वे फ्रॉम 20, बिकॉज अवर इंटरवल इज 15 टू 20, ठीक है. अब 20 से लाइन लेके जाना है ऊपर, 20 से ऊपर ले जाइए अप टू 10. देन ज्वाइन दीज पार्ट्स बोथ द कॉर्नर्स एंड ऑन द टॉप राइट डाउन 10, ठीक है. ये हो गया हमारा सेकेंड बार ऑफ हिस्टोग्राम. देन नेक्स्ट इंटरवल इज 20 टू 25, ठीक है. अब इसका मीनिंग है ये 20 से 25, इन बिटवीन दिस. नाउ 20 से अप टू 10 तो ऑलरेडी लाइन वी हैव ड्रॉन. नाउ वैल्यू कितनी है, सी नाउ सी द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इट इज 27, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है. नाउ एक्सटेंड दिस लाइन 20 से, स्टार्ट इट फ्रॉम 20 एंड टेक इट अप टू द हाइट ऑफ ये 27. 27 is to be located from this side on your graph. यहाँ से देखो where your 27 number is coming, यहाँ तक, ठीक है. Same way from 25, draw a line, start a line from 25, extend it up to number 27. Jasleen, you are not drawing the diagram, bhai. Jasleen Kaur, you are sitting idle. But a diagrammatic part, practical part is to be done with hands. Draw the diagram. Now join this part 27. Next is 25 to 30. Now check your table. What is the value 25 to 30? Adjusted frequency is 15. तो ये 25 से ऊपर हमारा 27 तक तो ऑलरेडी लाइन बनाई हुई है. अब आप यहाँ से चेक करो 15 है ना फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड. तो यहाँ पर पॉइंट पेंसिल से यू कैन मार्क ए पॉइंट. सिमिलरली स्टार्ट ए लाइन फ्रॉम 30, टेक इट अप टू द हाइट ऑफ 15. Then join these parts and on the top write down 15. Now the main point comes. Now here please look at the screen. अब ये देखो these 4 class intervals they were having gap of 5 only, ठीक है. अब next interval कितना है 30 to 40. Now gap of 10. तो अब हमने अपनी ओर से 30 to 35 नहीं करना. Now we have to draw rectangle with a width of 30 to 40. अब आप 30 से स्टार्ट करो. नाउ सी योर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज 6. तो ये 30 से यू विल टेक योर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है. 6 पे आके यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ठीक है. 6 पे यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है. देन 40 से लाइन को एक्सटेंड करना है. अब 35 का देयर इज नो रोल, चाहे हमने वी हैव रिटन वी हैव शोन, बट इट इज नथिंग इज टू बी डन टू दिस वैल्यू. हमारा इंटरवल विल बी, जो विड्थ ऑफ बार है दैट विल बी फ्रॉम 30 टू 40. सो स्टार्ट ए लाइन from 40, take it up to the height of 6, then join these parts, ये point और ये point को join करके top के ऊपर write down 6. Then next interval is 40 to 60. Now gap is of 20, ठीक है, and adjusted frequency is 3. तो अब 40 से line start करेंगे. ये 40 से start हो रही है और from y axis you can see, इधर से अपने ग्राफ पे आप चेक कर लो 3 कहाँ पे आ रहा है आपका. See the value of 3 and ये ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ करके अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए. देन स्टार्ट ए लाइन फ्रॉम 60. नथिंग टू बी डन टू दीज वैल्यूज, इसको कुछ नहीं करना, लीव देम एज दे आर. नाउ स्टार्ट ए लाइन इमर्जिंग फ्रॉम वैल्यू 60, यहाँ से टेक इट अप टू 3. नाउ ज्वाइन दीज कॉर्नर पॉइंट्स, टॉप के ऊपर वी विल राइट 3. Similarly, the last one,
Now last interval is 60 to 80. So 60 से already up to 3 we are having line, already we are having. Now 2, इसका मतलब इससे थोड़ा सा नीचे कितना है, यू हैव टू सी फ्रॉम द वाई एक्सिस, यहाँ से देख के ध्यान से उसके सामने स्केल रख के केयरफुली अप टू 2, पॉइंट इज हियर, देन 80, स्टार्ट लाइन फ्रॉम 80 और इसको भी टेक इट अप टू द हाइट ऑफ 2, देन ज्वाइन दिस कॉर्नर पॉइंट एंड this corner point, and on the top write down 2. I hope the steps are clear. Let me see all are doing or not. Yes, fine, fine, very good. Yes. हाँ जी बेटे, तो now the thing is, interesting point is, now you see the width of these bars is different. This width is showing the class intervals which are given in the original data. यही है ना, पहले 4 में 5 का डिफरेंस है तो ये 5 का डिफरेंस दिखा दिया. देन नेक्स्ट इंटरवल में डिफरेंस ऑफ 10 इज देयर, तो ये 30 to 40 10 का गैप दिखाया. नेक्स्ट लास्ट वाले 2 में 20 का गैप है, तो ये देखो ये विड्थ, ये 20 की विड्थ को दिखा रहा है 40 से 60, एंड लास्ट वन इज 60 to 80. मीन्स विड्थ हमें दिखानी है ओरिजिनल क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, और जो ये हाइट ऑफ बार्स है ये दिखाना है अकॉर्डिंग टू द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना कि आप ये वाली फ्रीक्वेंसी को शो कर दो, देन योर डायग्राम विल बी रॉन्ग. ये फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करना है, इट्स रोल इज ओवर. In the diagram we have to show this very first column and this very last column, इनकी प्रेजेंटेशन करनी है. ठीक, तो ऊपर टॉप के ऊपर I forgot to write the heading, you are requested to write the heading histogram showing wages of workers. ठीक है ना, वट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर उससे रिलेटेड आप बना लो. ये वेजेस से रिलेटेड है तो वी कैन मेक हेडिंग, प्लीज राइट इन कैपिटल लेटर्स, हिस्टोग्राम showing wages of workers. Then underline that heading, neat and clean writing should be there. Then now it is your wish, if you want to shade these bars, these rectangles, you can shade. If you shade, then you draw an index here, एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें शेडिंग करके उसके सामने आप लिख दो वर्कर्स. I hope the steps are clear. Now I would like to give the same one question of same type that will help you to understand. Quickly we will do that. Then we will proceed to the next frequency polygon. ठीक है, तो पहले आप please write the values. Short सा ही question है. हाँ जी, मैं बोल देती हूँ बेटे, आप लिख लीजिए. Class intervals are 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 100. I speak again, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 100. Frequencies are 15, again 15, then 50, 50, then 40, 40, and last है 18, 18, 18. I repeat, frequencies are 1515, second is also same 1515, third frequency is 5050, fourth one is 4040, and last frequency is 1818. ठीक है जी, and question is draw a histogram. अब हमें now we are not given in the statement कि भाई these are unequal intervals, it will not be written, you have to check. So first step, check all the intervals. This is very much example of unequal intervals. ठीक है, फर्स्ट 2 में गैप ऑफ 10 है, देन 30 to 50 में गैप ऑफ 20 है, देन 50 to 70 में गैप ऑफ 20 है, लास्ट में गैप ऑफ 30 है. तो फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर इन माइंड कि ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इट इज अनइक्वल इंटरवल केस. तो वी हैव टू ड्रॉ नेक्स्ट कॉलम, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी. आई रिक्वेस्ट यू टू डू इट योरसेल्फ फर्स्ट, देन क्रॉस चेक फ्रॉम द स्क्रीन. Very good, very good. Be fast. All the girls are there on my screen. Very good.
शाबाश. Race starts now. Harmeen, Mitali, Manya. पहले बेटे देखो व्हाट इज द लोएस्ट गैप, लोएस्ट इंटरवल वैल्यू कितनी है 10. ठीक है, फिर ईच इंटरवल की देखो गैप कितना है, हर एक का अपना अपना. ये 10 है, 10 डिवाइडेड बाय लोएस्ट गैप 10. Kanav Batra, do yourself. Don't try to look at the screen for answer. Do it yourself first. Beta, you can ask your question, Chahat. If anyone Actually, has a Chahat problem. wants to ask something. Anji bete, Chahat, please tell what is the problem bete? Chahat, Excuse me. let me see you on my screen also. Just wait a minute. Wait for a few seconds. Let me find where is Chahat. हाँ जी चाहत बताइए बेटे. रोल नंबर 60 चाहत. मैम Unmute इंडेक्स yourself. बना यस बेटे. मैम इंडेक्स बनाना जरूरी है. वो आपकी चॉइस है. चॉइस है आपकी. शेडिंग करना चाहते हो तो ठीक है. अगर नहीं टाइम हो, जैसे पेपर में मतलब टाइम इज लेस, तो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो. नो, नॉट ए बिग इशू. वो अपनी चॉइस है. बेटे if any one of you wants to ask, always please you can request Sukhjeet ma'am. You can unmute yourself and then you can ask. I hope you all have got adjustment factor. I say that I tell the values 1, 1, 2, 2 and 3. Adjustment factor 1, 1, 2, 2, 3. Then find adjusted frequency. Formula you already know. Frequency of first interval divided by its corresponding adjustment factor. 15/1. Similarly, for frequency of second class interval divided by its adjustment factor. 15/1. Then frequency of third class interval, that is 50, to be divided by its adjustment factor, that is 2. तो ये आ जाएगा 25. फिर frequency next is 40 to be divided by its adjustment factor 2, तो 40/2 20. फिर next frequency is 18 to be divided by its adjustment factor 3, it will be 6. ठीक है. Now on y axis, since we are not given, we have not been given any particular name of this statement, कोई variable का particular name is not given, no problem. We will just directly write on x axis class interval, on y axis frequency. ठीक है. अब now see in the frequency, firstly check which is the highest value, 25. So your height of this y axis points, maximum point will go up to 25. We can take 5, 10, 15, 20, 25. Okay. Then on x-axis, see the first interval, lowest value 10 and last value है, highest value है 100. ठीक है. तो इसका मतलब है कि हमें 10 से लेके 100 तक values दिखानी है. तो gap of 10 can be taken 0, 10, 20, 30, 40 and so on. ठीक है. After that follow the same steps as I have told you. Now pay attention to this class interval first column and adjusted frequency. इसको आपने keeping in view, then you have to draw the rectangles. And on the top of each rectangle, please write the value of this adjusted frequency. जैसे first 15 है, second भी by chance same है 15, we will write again. ये नहीं कहना कि center में लिख रहे हैं कि common है, no, write separately. 15, this is also 15. Its height is, its value is 25. Its value is 20 and last one value is 6. Okay. Now we see, if we see the diagram carefully, then very easily we can find the difference in the class interval. See this width of bars. Bars मतलब rectangles.
This is showing nothing else but the difference in the class intervals. Just by having a simple observation, we can very easily find कि this gap is of 10, यहाँ से देख के this gap is of 10, this gap is of 20, ये width is more than this is of 20, this is still more, this gap is 30. Please complete it fast, then we will start the next part. हाँ जी, जैस्मिन ने कर लिया लग रहा है, तभी इधर उधर देख रहे हैं. वेरी गुड जैस्मिन. केतन डन बेटे? केतन सेठी कर लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड चिल्ड्रन, शाबाश. चलो, नाउ कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट? ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, हिस्टोग्राम. ठीक है, अब मतलब दो क्वेश्चन हमने कर लिए, रेस्ट यू कैन डू प्रैक्टिस योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस. ठीक है, सो फर्स्टली वी शुड नो द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज नथिंग एल्स बट द अगेन it is the diagrammatic या graphical presentation of continuous series, same as we have done, but only one step, additional step is to be taken care of. In frequency polygon, what do? We just join the midpoints of all these bars, जो भी histogram के bars होते हैं, उनका midpoints, they are to be joined with the scale, बस then the shape whatever we get, that is known as frequency polygon. ठीक है, in your book wherever this heading is given, उसकी first और second line में definition is given. Frequency polygon means it is formed by joining the midpoints of the rectangles of a histogram. ठीक है, frequency polygon is nothing else but the diagrammatic या graphical presentation. We can use the word diagram also even. Diagrammatic या graphical presentation of a continuous series in which top midpoints of the bars of या rectangles of these histograms, they are joined with scale, and then whatever shape we get, that is known as frequency polygon. Let me start. Yes, now you can also draw this picture in your notebook. You can give the heading frequency polygon. Now there are two methods to draw frequency polygon. ऐसे ही आप ऐसे एक flow chart सा you can draw. One way कि frequency polygon, it can be drawn with the help of construction of histogram. With the, आप यहाँ पे you can add the word with the help of construction of histogram. With the help of construction of histogram. This is one of the ways. With the help of construction of histogram. And yet another way is also there to draw this polygon. वो क्या है? That is without the construction of histogram. Without the construction of histogram. और इसी को ही बोल देते हैं और frequency polygon with midpoints only. Please write both the words. Or with midpoints only. वेरी सिंपल, नॉट ए बिग इशू. इसको आप ऐसे समझ लो, अभी हमने हिस्टोग्राम किया ना, तो ये उसका बड़ा भाई है, बस और कुछ नहीं है. थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा काम करना है. बड़ा भाई कह लो, गर्ल्स नाराज ना हो जाए, बड़ी सिस्टर भी कह सकते हो आप इसको, हैं. वेरी इजी. तो सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, चाहे तो हम उसको हिस्टोग्राम बना के प्रेजेंट कर दें, और अगर हमारा दिल नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, हिस्टोग्राम अच्छा नहीं लगता जिसको, वो कहता है नहीं मैंने नहीं बनाना, तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, वो बिना हिस्टोग्राम बनाए भी बना सकता है. ठीक है, अब कैसे करना है, लेट अस स्टार्ट दैट. तो फर्स्टली यू गिव द हेडिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम. वी विल डू बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो पहले इसका करते हैं, राइट द हेडिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम. 10 minutes रह गए हैं. आई वॉन्ट दिस क्वेश्चन टू बी completed. So quickly write statement, class intervals 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. अच्छा, one another interesting fact is there. In this case, we will always be given equal intervals. तो इसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा उसका unequal का. ठीक है. Then frequencies are 7, 12, 23, 17 and 5. 7, 12, 23, 17 and 5. बस आपने एक नज़र मार लेना है. All are equal intervals. Yes. Corresponding frequencies are given. Very right. Now just simply draw axis on your graph sheet. What is the height of, what will be the height of your y-axis? 23 है, तो that means up to 25 we need to draw, we need to plot the points. तो ये हो जाएगा 0, 5, 10, 15, 20, 25. ठीक है. और क्लास इंटरवल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड गोइंग मैक्सिमम अप टू 60. तो ऑन एक्स एक्सिस यू ड्रॉ द पॉइंट्स 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 तक आपने पॉइंट लेके जाना है. क्यों 70 तक है वो दैट आई टेल लेटर. टेक पॉइंट्स अप टू 70. ठीक है. एंड प्लीज कीप इक्वल गैप. 0 से लेके जितना ये 10 का गैप है, कीप दैट गैप सेम अमंग ऑल द पॉइंट्स. यस. नाउ अभी ये जो ऊपर लाइन आपको दिख रही है ना, इसको कुछ नहीं करना. फर्स्टली यू जस्ट ड्रॉ हिस्टोग्राम. ये जो बीच में मैंने लाइन लगाया, इसको कुछ नहीं करो. आप सिंपली यू जस्ट ड्रॉ सिंपल हिस्टोग्राम. तो फर्स्ट इंटरवल इज 10 to 20. तो एंड हाइट इज, वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी 7. 10 से लेके 7 की हाइट तक व्यूइंग फ्रॉम दिस साइड. ये आपने ये फर्स्ट रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके लिख देना है 7. बिल्कुल बीच में नहीं लिखना, थोड़ा सा साइड पे करके लिखना है 7. देन ड्रॉ सेकेंड डायग्राम, सेकेंड रेक्टेंगल. 20 से लेके हाइट कितना जाएगा हमारा, इट इज 12. तो एक्सटेंड दिस लाइन 7 तक तो बना ही हुआ है. एक्सटेंड इट लिटिल मोर, टेक इट अप टू द हाइट ऑफ 12. सिमिलरली फ्रॉम 30 ड्रॉ द लाइन, टेक इट अप टू द हाइट ऑफ 12. join these corner points and here little bit on one side of the center, थोड़ा सा एक साइड पे, right here 12. Then third rectangle. Now it is having the highest maximum frequency 23. तो ये starting from 30. See now 12 तक तो already हमने draw किया है, और इसको extend कर लें with the help of scale. Take it up to 23 यहाँ तक. Similarly, one line to be drawn starting from this 40. Take it up to the height of 23. यहाँ तक इसको ले आइए. Join these points and top के ऊपर 23. Similarly, 40 to 50. ये 40 से लेके, अब देखो 40 वाला ये काम, दिस इज वेरी इजी बिकॉज ऑलरेडी लाइन हैज बीन ऑलरेडी ड्रॉन बाय अस. बस करना कुछ नहीं है. 17 को इधर से देख लो कहाँ पर आ रहा है आपका 17. ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे आ रहा है. इसके सामने स्केल से यहाँ करके पॉइंट ही लगाना है. लाइन तो ऑलरेडी बनी हुई है. 17. नाउ स्टार्ट लाइन फ्रॉम 50, टेक इट अप टू हाइट ऑफ 17. फिर इसको आपने ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट को और ये कॉर्नर पॉइंट को. टॉप के ऊपर थोड़ा सा साइड पे राइट 17. देन सिमिलरली लास्ट दिस रेक्टेंगल 50 to 60. दिस इज वेरी स्मॉल, अप टू हाइट ऑफ 5 ओनली. ये लाइन थोड़ी सी शायद आपको दिख नहीं रही, बट इट इज, देयर इज ए लाइन. यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन, इसको रेक्टेंगल को कवर करना है. ठीक है. टॉप ये वाला, ये लाइन है एक ड्रॉ की हुई. अच्छा, अब इसके बाद नाउ नेक्स्ट स्टेप कर लीजिए जल्दी से. देन आई टेल द नेक्स्ट स्टेप. वेरी गुड मुस्कान, मनदीप, हरी अप हरी अप. Himmat Singh, your only hand is visible and picture is still. I think you are not having interest, or you don't want to show yourself on the screen. Huh?
यस गुरजोत, प्रांजल, वेरी गुड। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आई होप ऑल हैव डन अप टू दिस पार्ट। अब क्या करना है, ये जो आपने रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं ना, ये टॉप, अब आपने इसका बिल्कुल मिड पॉइंट, अब आप ध्यान से देखो मिड पॉइंट क्या बनेगा, इंटरवल क्या है 10 to 20, तो 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या होगा 15, 10 plus 20 divided by 2, आई होप यू रिमेंबर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 10 plus 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15। तो चाहे तो हम यहाँ से देख लें 15, यहाँ से देख के लाइन अपनी देख लो ऊपर, आपका 15 कहाँ पे आएगा, बिकॉज ये जो विड्थ होती है चाहे हम ये नीचे दिखा रहे हैं या ऊपर है, ये बात एक ही है, मतलब ये गैप 10 to 20 के बीच का ही है। तो ये वाली जो अपर लाइन है इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, आपका 15 के ऊपर आएगा। ठीक है, तो 15 के ऊपर पॉइंट लगा के उसको ऐसे छोटा सा एक सर्कल कर लो ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए, बिकॉज अदरवाइज सिंपली इफ वी यू विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एक पॉइंट ही लगाते हैं ना तो कई बार दिखता नहीं है, थोड़ा सा एक पॉइंट लगा के उसको छोटा सा उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली 20 to 30 मिड पॉइंट क्या बनता है, 20 plus 30 50 डिवाइडेड बाई 2 25, तो बिल्कुल ये 25 के ऊपर ये जो विड्थ है इसका बिल्कुल मिड पॉइंट 25 के ऊपर पॉइंट लगाना है, छोटा सा पॉइंट लगा के देन छोटा सा इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करिए। सिमिलरली नेक्स्ट 30 to 40, ये इसकी विड्थ का मिड पॉइंट क्या बनेगा, मिड पॉइंट विल बी 30 to 40 मीन्स ये हो गया 30 plus 40 70 डिवाइडेड बाई 2, मतलब मिड पॉइंट हो गया 35। सिमिलरली नेक्स्ट मिड पॉइंट विल बी 45, ठीक है ना, 40 plus 50 90 over 2 45, नेक्स्ट हो जाएगा 55, गैप ऑफ 10 विल बी गोइंग ऑन बिकॉज इंटरवल्स में भी गैप 10 का है तो 10 का गैप आएगा। नाउ नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये हो गया, फिर से सुनो, ये हो गया हमारा 15 25 35 45 55, देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वैल्यू, मिड वैल्यू 55 के बाद क्या होनी चाहिए 65। ठीक है, अब आपने 65 ये एक्सिस के ऊपर पॉइंट लगाना है, तभी मैंने पहले बोला था ना ये 70 तक लेके जाना है, तो उसका पर्पस ये था। अब आपने ये 65 अपने ग्राफ पेपर के ऊपर देखिए जहाँ भी आपका पॉइंट आता है 65, वहाँ पॉइंट लगा के उसको भी एनसर्कल 65 पे। सिमिलरली ये फर्स्ट मिड पॉइंट था 15, तो उसके पहले वाला प्रीसीडिंग टू दैट 15 व्हाट शुड बी द मिड पॉइंट, इफ देयर इज गैप ऑफ 10 10 अमंग ऑल द मिड पॉइंट्स, तो स्टार्ट हो रहा है 15 से, इसका मतलब उसके पहले वाला मिड पॉइंट क्या होना चाहिए था 15 minus 10 5, ठीक है ना, 5 ही होना चाहिए था तभी बात बनेगी, 5 15 25 35 45 55 एंड 65। तो आपने यहाँ क्या करना है, जो 0 और 10 के बीच में जहाँ भी आपका 5 आ रहा है पॉइंट, वहाँ पे भी पॉइंट लगा के एनसर्कल कर दीजिए। बस ओनली थिंग इज कि एक बिगनिंग में मिड पॉइंट पहले दिखाना है और एक लास्ट में दिखाना है। जो हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, in addition to those midpoints, one midpoint is to be shown beforehand and one midpoint is to be shown in after the last midpoint of our table. Okay, now with the help of your scale, please join these points. Free hand से नहीं, with scale there should be angularity, तीखी सी लाइन बनेगी ना, एंगुलरिटी मतलब एंगल दिखना चाहिए। विद स्केल स्टार्ट फ्रॉम दिस 5, यहाँ से लेके स्केल की हेल्प से ज्वाइन दिस पॉइंट 5 टू ये वाला जहाँ फ्रीक्वेंसी 7 लिखा है, ये ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, फिर आफ्टर दैट विद स्केल ज्वाइन दिस एंड दिस पॉइंट, फिर ये पॉइंट से ये टॉप के ऊपर इसको ज्वाइन करिए, देन नाउ कमिंग डाउनवर्ड ज्वाइन दीज पॉइंट्स, देन अगेन फर्दर डाउनवर्ड यहाँ से लेके ये अप टू 5, नाउ लास्ट ये वाले 5 से लेके नाउ ये अप टू 65, all these points are to be joined with scale. Thus this is all about frequency polygon. ऊपर you can give heading. अब इसमें since we have not been given any information, तो directly we can write frequency polygon. Now in this case there is no need of shading or any index because उससे फिर बड़ा complex सा हो जाएगा, पता नहीं चलता है. We have to show these this line very carefully, so no need of index. Only heading is to be given frequency polygon. ठीक है जी, this is the work of the day.